السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 5 عورتوں کے بارے میں سنانے جا رہے ہیں۔ 5 عورت ایسے ہیں جو روزہ رکھتی ہیں پر وہ جنت میں نہیں جائیں گی، آخر کیوں؟ تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں، روح کانپ جانے والی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ جو حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ بد نصیب عورتیں جو عبادت گزار ہوں گی لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں مومن اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن صد افسوس کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، خاص کر کے ایسی عورتیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسے ہوں گی جو عبادت بھی کریں گی، روزے بھی رکھیں گی، لیکن وہ جہنم میں داخل ہوں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی بد نصیب عورتیں ہیں جو روزوں کی پابند ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روک نہیں پائے۔ تو میری تمام ماں بہنیں جو ہماری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتی ہیں، میں ان تمام ماں بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سن لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کہیں آپ بھی تو ان عورتوں میں شامل نہیں ہیں؟ خدا را اگر آپ میں بھی ایسی کوئی خصلت موجود ہے تو آپ کو اللہ کا واسطہ کہ سچی پکی توبہ کر لو اور اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لو۔ تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی اور جہنم میں داخل ہوگی۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری تو کریں گی، روزہ بھی رکھے گی اور افطار بھی کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کرے گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کے سبب یہ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ بڑی تعجب کی بات ہے نا کہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی ادا کرے گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی سونگھ نہیں پائے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، تو سوچو وہ کیسی بد نصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکے گا۔ ایسی عورتیں اپنے اعمال کی قیدی بن کر رہ جائے گی، جو دن بھر بھوکی تو رہی مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی۔ تو آخر ایسا ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہے۔ تو آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ان کی نماز، ان کی دعائیں اور ان کے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں؟ اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ تو سب سے پہلے نمبر 1، بد اخلاق اور تیز زبان عورت۔ تو وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کے دل کو توڑتی ہے، لوگوں کی عزت اچھالتی ہے، غصے میں ایسے آگے بڑھ جاتی ہے، ایسے الفاظ بولتی ہے جس سے سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتی۔ ایک بار ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق برا ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہرگز نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے ہی بنایا ہے جن کے اخلاق نرم ہو، دل پاکیزہ ہو اور رویے اچھے ہو۔ اب غور کرو، وہ عورت جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، تو وہ جنت کی حقدار نہیں ہے۔ پھر یہی شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے جو کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہے، وہ دوسروں کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اچھے اخلاق سے مالا مال ہے اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نمازوں کی پابند بنا دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اگر تمہاری زبان سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم دوسروں کو
नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो तो तुम्हारी नमाजें मुंह पर मार दी जाएगी। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा हो। मगर आज हम अपने आसपास की औरतों पर नजर डालें तो ये देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दे दी। यह अपनी औकात भूल बैठी है, शौहर के सामने बदतमीजी, गुरूर और नाफरमानी करने लगी है। नरम लहजे को छोड़कर सख्त और तेज अल्फाज अपना लिए हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपने खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती है, मगर वो ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद चीज है। ऐसी औरतों का अंजाम हमारे नबी ने शब मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा है। जब मेरे नबी मेराज की रात में जहन्नुम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नुम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नुम में लटकी हुई थी, उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थी, वो तड़प रही थी, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, है जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं जो इस तरह अजाब में मुब्तिला है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहर के साथ बदतमीजी किया करती थी, अपने शौहर के सामने बद अखलाक बन कर रहती थी, तेज जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के सारे माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से ताने देने वाली थी, इसलिए जहन्नम में जल रही। उनके गुरूर, तेज जुबान और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादत को जाया कर दिया है। तो मेरी बहनों, क्या आप में से तो कोई ऐसी नहीं है जो अपने शौहर के सामने सख्त लहजा रखती हो, जो अपनी जुबान से दर्द देती हो, जो शौहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गुरूर करती हो? आज अगर आपने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, अपनी बदतमीजी को ना छोड़ा, आज अगर आपने तकब्बुर को ना तोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन आपको भी इन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक भी होना जरूरी है, वरना आपकी नमाज भी आपको जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। अब नंबर 2, अपने शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये बात भी शायद आपको हैरत में डाल देगी, मगर ये भी एक हकीकत है। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरतों को देखा। तो सहाबा ने पूछा, ऐ हमारे नबी, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शौहर की नाशुक्री करती है। तो अगर आज हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत भी करती है, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्र गुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शौहर की 1000 नेकियां नजर ही नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करती है, दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां और शिकायत करती है। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर के एहसान का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तेज जुबान और नाफरमानी के जरिए देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारे लिए मशक्कत करता है, लेकिन तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाज को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तरावी काफी नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक, शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी और मोहब्बत वाला बर्ताव भी जरूरी है। तो मेरी बहनों, सोचो, अगर तुम रोजा रख कर भी अपने शौहर की इज्जत ना कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक होंगी? नहीं। अभी भी वक्त है, अपने दिल को अभी बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज, दिल दहला देने वाली बात बताता हूँ कि एक ऐसी औरत है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे अपने शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते थे, जो हर वक्त सिकवे करती कि यह कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। तो उसके शौहर ने कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी ला कर दी, मगर उसने उसे जमीन पर पटक दी और कहा, ये किसी फकीर की खैरात जैसी लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसे जेवर चाहिए। तो वो शौहर आंख में आंसुओं के साथ चुपचाप खड़ा रहा, मगर अल्लाह का गजब ऐसे जाहिर हुआ कि चंद दिनों के बाद उसका शौहर बीमार हो गया, उसकी रोजी खत्म हो गई, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी और वो औरत भी आग की लपटों में आ गई और तड़पने लगी, मदद के लिए चीखें मार रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को
देखा जिसके करीब एक कागज पड़ा हुआ था। शायद उसका शौहर लिख कर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, मेरा प्यार पसंद नहीं था, मेरा सब्र पसंद नहीं था, लेकिन अब अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया है और तुम्हारी नाशुक्री का हिसाब भी ले लिया है। तो यही है नाशुक्री का अंजाम। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरत में। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएगी। अब नंबर 3, बेपर्दा औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों में, सोशल मीडिया पर और शादियों में अपनी जीनत की नुमाइश करती है। वो नमाज के बाद फौरन आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने लिबास को संवारती है, मेकअप करती है, तस्वीरें खिंचवाती है और मर्दों की नजरों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। मगर उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोजा रख रही है, उसी के हुक्म को सरेआम तोड़ भी रही है। तो यही वो औरतें हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहन कर भी नंगी होंगी। वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहक जाएगी और ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। तो सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी जाए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। तो माह रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं है, बल्कि नफ्स को पाक करने का और अल्लाह की रजा में ही जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती है, मगर इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती है, शॉर्ट लिबास पहनकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाती है, मगर ये भूल जाती है कि यही श्रृंगार अगर उसके शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर यह जब गैर महरम के लिए हो तो यही जीनत उसके लिए जहन्नम का सबब बन जाती है। तो मेरी बहनों, सुन लो, अगर तुम रोजा रख कर भी अपने पर्दे को संभाल नहीं सकती और अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नम की आग की तरफ ले जा रहा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। अब नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें। अब ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान से निकले तेज अल्फाज माँ बाप के दिल को चीर देते हैं। जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती है, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बात करती है, वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, तो क्या ऐसी औरत के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज है। तो सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हुकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिद की बेकदरी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती है, उन्हें ताने मारती है, मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रख कर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती है, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिद को राजी करने वाली ही जन्नत में जाएगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। अब नंबर 5, दूसरों की बुराई और गिबत करने वाली औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन पर, हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ रहती है। किसी के लिबास पर तो किसी के हुस्न पर, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, बस यही सब उनकी आदत बन चुकी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया, गिबत करना अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो सोचो, क्या तुम रोजा रख कर अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा सकती हो? नहीं ना। तो जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज को फाश करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती है। ऐसी औरतों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती है, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराई शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फायदा? तो कयामत के दिन बहुत
सी नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान होकर खड़ी होंगी कि उनके नामाए आमाल में नेकियां क्यों नहीं हैं। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गई है जिनकी तुमने गिबत की थी। तो सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं बल्कि रूह को पाक करने के लिए। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया, अगर तुमने गिबत करना ना छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। तो इसलिए ये फरमाया गया है कि माह रमजान के बाबरकत महीने में हर औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं। तो ये वो 5 गुनाह हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, माह रमजान आने वाला है, क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया है? क्या तुमने अपनी जुबान, अपने अमाल, अपनी नियत को दुरुस्त कर लिया है? अगर नहीं तो रमजान की तैयारी कर लो, अपने जिस्म को पाक कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, अपने दिल से मुनाफिकत, बुग़्ज़, हसद, कीना सब निकाल दो और एक सच्ची पक्की तौबा कर लो और रमजान के अदब व एहतराम के लिए तौबा के साथ खड़ी हो जाओ और अपने हाथ उठाकर अल्लाह से ये दुआ करो कि वो तुम्हें यह रमजान नसीब फरमाए, तुम्हारी जिंदगी में ये रमजान बरकत, मगफिरत और हिदायत का जरिया बन जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमजान की बरकतों से महरूम ना रखे। तो मेरी प्यारी माँ बहन, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ होगा। अगर वाकई आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो वीडियो को अभी का अभी ज्यादा से ज्यादा मुसलमान माँ बहनों को शेयर कर दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माह रमजान में इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। इरशाद फरमाते हैं कि हम एक सफर पे थे, वापस